ક્યાંક દુકાનો તબાહ થઈ તો ક્યાંક મકાન જમીનદોસ્ત થયા, કોઈના રહેઠાણ ઉજળી ગયા તો કોઈની કમાણી છીનવાઈ ગઈ। દિલ્હીના જહાંગીરપુરીમાં સુપ્રીમ કોર્ટે બુલડોઝર પર જે બ્રેક લગાવી તે આગામી 15 દિવસ સુધી યથાવત રહેશે, પરંતુ કોર્ટની નારાજગી એ વાત પર છે કે આદેશ છતાં નોર્થ એમડીસીએ કાર્યવાही अटकावी કેમ नहीं। अगर ये डेमोलिशन रुक जाता ऑर्डर मिलने के बाद, ऑर्डर की खबर पहुंचने के बाद, तो शायद कुछ कम डेमोलिशन हो पाता, लेकिन इस बात की जानकारी हमने कोर्ट को एफिडेविट के जरिए दी है। कोर्ट ने इस बात पर पूछा है कि ये क्यों चलता रहा इस तरह, उसको हम देखेंगे और उसको एग्जामिन करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिला वैसे ही एक्शन बंद कर दिया गया, उसके बाद कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन सर कई सारी चीज़ें फिर भी चल रही थी, मतलब बुलडोजर चल रहा था वहाँ पर। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब कहने में जो मर्जी आप कहते रहे, मगर जैसे ही हमें आदेश मिला तुरंत ही कार्रवाई को बंद कर दिया गया। सुप्रीम कोर्टમાં સુનાવણી દરમિયાન જહાંગીરપુરીના અરજદારોના વકીલ દુષ્યંત દવેએ દલીલ કરી કે એક જ સમાજના લોકોને નિશાન બનાવવામાં આવી રહ્યા છે, 5 થી 15 દિવસની નોટિસ મળવી જોઈએ। આ કાર્યવાહી ભાજપના આદેશ પર થઈ રહી છે। પીડિત પક્ષ તરફથી વકીલ સિબ્બલે દલીલ કરી ગેરકાયદેસર નિર્માણ સમગ્ર દેશની સમસ્યા છે, પણ એક સમાજને નિશાન બનાવવામાં આવી રહ્યો છે। તેના પર જસ્ટિસ નાગેશ્વર રાવે મોટી ટિપ્પણી કરતા કહ્યું, અમે દેશભરમાં દબાણ અટકાવવા માટે આદેશ આપી શકીએ નહીં। પીડિતોને અરજદારના વકીલનો જવાબ સરકારી વકીલ તુષાર મહેતાએ આપ્યો। 19 ફેબ્રુઆરીથી વિસ્તારમાં અભિયાન ચાલી રહ્યું છે। એક સંગઠન જમિયતે આ મામલે કૂદીને તેને જટિલ બનાવી રહ્યું છે। ખરગોનમાં પણ હિન્દુઓની 88 સંપત્તિઓને તોડવામાં આવી। સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું, અમારા આદેશ બાદ પણ કાર્યવાહી ચાલી રહી છે, તેને અમે ગંભીરતાથી લઈએ છીએ। યથાસ્થિતિનો આદેશ માત્ર દિલ્હી માટે જ છે। ત્યારબાદ સુપ્રીમ કોર્ટે નોટિસ આપતા 2 અઠવાડિયા બાદ સુનાવણીની તારીખ આપી। કોર્ટના આદેશ બાદ જહાંગીરપુરીમાં બુલડોઝરની કાર્યવાહી તો અટકી ગઈ, પરંતુ રાજકીય જમાવડાનો સિલસિલો ચાલુ જ છે। અજય માકન, ઇમરાન પ્રતાપ ગઢી સહિતના કોંગ્રેસ नेताओं एक दल जहांगीरपुरी विस्ताરમાં પહોંચ્યું। जब कोर्ट के आदेश हैं, भारत सरकार की पॉलिसी है कि बगैर नोटिस किसी को नहीं हटाया जा सकता है, गिराया जा सकता है, तो क्यों ये काम यहाँ पे कल हुआ है? ये केवल और केवल गरीब के पेट के ऊपर लात मारी गई है। જો કે પોલીસે કોંગ્રેસ નેતાઓને કુશલ ચોકથી આગળ જઈ પીડિતોને મળવાની પરવાનગી ન આપી। આ પહેલા બુધવારે સાંજે ઓવીસી પણ જહાંગીરપુરી પહોંચ્યા, પરંતુ માહોલને જોતા પ્રશાસને તેમને પણ પીડિતોને મળવાની પરવાનગી ન આપી। યુપીથી લઈ મહારાષ્ટ્ર સુધી લાઉડસ્પીકર પર અજાન અને હનુમાન ચાલીસાને લઈ ઘમાસાણ મચી ગયું છે। જેનું પાલન કરવા માટે જિલ્લાના વહીવટી અધિકારીઓ વ્યસ્ત બન્યા છે। આગ્રમમાં પણ ધ્વનિ નિયંત્રણને લઈ જિલ્લા પ્રશાસને ગાઈડલાઈન જાહેર કરી, તો સાઉન્ડની નક્કી મર્યાદાથી વધુ અવાજમાં લાઉડસ્પીકર ચલાવવાની પરવાનગી નથી। તેને લઈ તમામ સમાજના લોકોને સમજાવવામાં આવી રહ્યા છે। મથુરામાં પણ શ્રી કૃષ્ણ જન્મસ્થાન પર લગાવેલ લાઉડસ્પીકર બંધ કરાયા। સવારે 5:30 વાગે લાઉડસ્પીકર પર ચાલનારા વિષ્ણુ શાસ્ત્ર ગઈકાલ સવારથી બંધ છે। એટલે કે यूपीમાં નવો આદેશ અનુસાર હવે માત્ર ધાર્મિક સ્થળોની અંદર લાઉડસ્પીકર વગાડવાની પરવાનગી છે। તો દિલ્હીમાં પ્રધાનમંત્રી અત્યારે સંબોધન કરવા જઈ રહ્યા છે। દિલ્હીમાં જે પ્રકાશ પર્વનું આયોજન થયું છે ત્યાં પીએમ મોદી સંબોધન કર્યા છે। गुरु को समर्पित स्मारक डाक टिकट और सिक्के के विमोचन का भी सौभाग्य मिला है। मैं इसे हमारे गुरुओं की विशेष कृपा मानता हूं। इसके पहले 2019 में हमें गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व और 2017 में गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व मनाने का भी सौभाग्य मिला था। मुझे खुशी है कि आज हमारा देश पूरी निष्ठा के साथ हमारे गुरुओं के आदर्शों पर आगे बढ़ रहा है। मैं इस पुण्य अवसर पर सभी 10 गुरुओं के चरणों में आदरपूर्वक नमन करता हूं।
आप सभी को, सभी देशवासियों को और पूरी दुनिया में गुरुवाणी में आस्था रखने वाले सभी लोगों को मैं प्रकाश पर्व की हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, ये लाल किला कितने ही अहम कालखंडों का साक्षी रहा है। इस किले ने गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत को भी देखा है और देश के लिए मर मिटने वाले लोगों के हौसले को भी परखा है। आजादी के बाद के 75 वर्षों में भारत के कितने ही सपनों की गूंज यहां से प्रतिध्वनित हुई है। इसलिए आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान लाल किले पर हो रहा ये आयोजन बहुत विशेष हो गया है। साथियों, हम आज जहां हैं, अपने लाखों करोड़ों स्वाधीनता सेनानियों के त्याग और बलिदान के कारण है। आजाद हिंदुस्तान, अपने फैसले खुद करने वाला हिंदुस्तान, लोकतांत्रिक हिंदुस्तान, दुनिया में परोपकार का संदेश पहुंचाने वाला हिंदुस्तान, ऐसे हिंदुस्तान के सपने को पूरा होते देखने के लिए कोटि कोटि लोगों ने खुद को खपा दिया। ये भारत भूमि सिर्फ एक देश ही नहीं है, बल्कि हमारी महान विरासत है, महान परंपरा है। इसे हमारे ऋषियों, मुनियों, गुरुओं ने सैकड़ों हजारों सालों की तपस्या से सींचा है, उसके विचारों से समृद्ध किया है। इसी परंपरा के सम्मान के लिए, उसकी पहचान की रक्षा के लिए दसों गुरुओं ने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इसलिए साथियों, सैकड़ों काल की गुलामी से मुक्ति को, भारत की आजादी को, भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा से अलग करके नहीं देखा जा सकता। इसलिए आज देश आजादी के अमृत महोत्सव को और गुरु तेग बहादुर साहब के 400वें प्रकाश पर्व को एक साथ मना रहा है, एक जैसे संकल्पों के साथ मना रहा है। साथियों, हमारे गुरुओं ने हमेशा ज्ञान और अध्यात्म के साथ ही समाज और संस्कृति की जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने शक्ति को सेवा का माध्यम बनाया। जब गुरु तेग बहादुर साहब का जन्म हुआ था, तो गुरु पिता ने कहा था, दिन रक्ष संकट हरण, दिन रक्ष संकट हरण, यानी ये बालक एक महान आत्मा है, ये दिन दुखियों की रक्षा करने वाला, संकट को हरने वाला है। इसलिए श्री हरगोविंद साहब ने उनका नाम त्यागमल रखा। यही त्याग गुरु तेग बहादुर साहब ने अपने जीवन में चरितार्थ भी करके दिखाया। गुरु गोविंद सिंह जी ने तो उनके बारे में लिखा है, तेग बहादुर सिमरिए घर नौ निधि आवे धाई, सब थाई होई सहाय। अर्थात गुरु तेग बहादुर जी के सुमिरन से ही सभी सिद्धियां
अपने आप प्रकट होने लगती हैं। गुरु तेग बहादुर जी का ऐसा अद्भुत आध्यात्मिक व्यक्तित्व था, वो ऐसी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। साथियों, यहां लाल किले के पास यहीं पर गुरु तेग बहादुर जी के अमर बलिदान का प्रतीक गुरुद्वारा शीशगंज साहब भी है। ये पवित्र गुरुद्वारा हमें याद दिलाता है कि हमारी महान संस्कृति की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान कितना बड़ा था। उस समय देश में मजहबी कट्टरता की आंधी आई थी। धर्म को दर्शन, विज्ञान और आत्मशोध का विषय मानने वाले हमारे हिंदुस्तान के सामने ऐसे लोग थे जिन्होंने धर्म के नाम पर हिंसा और अत्याचार की पराकाष्ठा कर दी थी। उस समय भारत को अपनी पहचान बचाने के लिए एक बड़ी उम्मीद गुरु तेग बहादुर साहब के रूप में दिखी थी। औरंगजेब की आतताई सोच के सामने उस समय गुरु तेग बहादुर जी हिंद दी चादर बनकर, एक चट्टान बनकर खड़े हो गए थे। इतिहास गवाह है कि वर्तमान समय गवाह है और ये लाल किला भी गवाह है कि औरंगजेब और उसके जैसे अत्याचारियों ने भले ही अनेकों सिरों को धड़ से अलग करा, लेकिन हमारी आस्था को वो हमसे अलग नहीं कर सका। गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान ने भारत की अनेकों पीढ़ियों को अपनी संस्कृति की मर्यादा की रक्षा के लिए, उसके मान सम्मान के लिए जीने और मर मिट जाने की प्रेरणा दी है। बड़ी बड़ी सत्ताएं मिट गई, बड़े बड़े तूफान शांत हो गए, लेकिन भारत आज भी अमर खड़ा है। भारत आगे बढ़ रहा है। आज एक बार फिर दुनिया भारत की तरफ देख रही है। मानवता के मार्ग पर पथ प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है। गुरु तेग बहादुर जी का आशीर्वाद हम नए भारत के आभामंडल में हर और महसूस कर सकते हैं। भाइयों और बहनों, हमारे यहां हर कालखंड में जब जब नई चुनौतियां खड़ी होती है तो कोई न कोई महान आत्मा इस पुरातन देश को नए रास्ते दिखाकर दिशा देती है। भारत का हर क्षेत्र, हर कोना हमारे गुरुओं के प्रभाव और ज्ञान से रोशन रहा है। गुरु नानक देव जी ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया। गुरु तेग बहादुर जी के अनुयायी हर तरफ हुए। पटना में पटना साहिब और दिल्ली में रकाबगंज साहिब, हमें हर जगह गुरुओं के ज्ञान और आशीर्वाद के रूप में एक भारत के दर्शन होते हैं। भाइयों और बहनों, मैं अपनी सरकार का सौभाग्य मानता हूं कि उसे गुरुओं की सेवा के लिए इतना कुछ करने का अवसर मिल रहा है। पिछले वर्ष ही हमारी सरकार ने साहिबजादों के महान बलिदान की स्मृति में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने का निर्णय किया है। सिख परंपरा के तीर्थों को जोड़ने के लिए भी हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। जिस करतारपुर साहिब कॉरिडोर की दशकों से प्रतीक्षा की जा रही थी, उसका निर्माण करके
हमारी सरकार ने गुरु सेवा के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। हमारी सरकार ने पटना साहिब समेत गुरु गोविंद सिंह जी से जुड़े स्थानों पर रेल सुविधाओं का आधुनिकीकरण भी किया है। हम स्वदेश दर्शन योजना के जरिए पंजाब में आनंदपुर साहिब और अमृतसर में अमृतसर साहिब समेत सभी प्रमुख स्थानों को जोड़कर एक तीर्थ सर्किट भी बना रहे हैं। उत्तराखंड में हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे बनाने का काम अभी आगे बढ़ रहा है। साथियों, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हमारे लिए आत्म कल्याण के पथ प्रदर्शक के साथ साथ भारत की विविधता और एकता का जीवंत स्वरूप भी है। इसलिए जब अफगानिस्तान में संकट पैदा होता है, हमारे पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूपों को लाने का प्रश्न खड़ा होता है, तो भारत सरकार पूरी ताकत लगा देती है। हम न केवल गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप को पूरे सम्मान के साथ शीर्ष पर रखकर लाते हैं, बल्कि संकट में फंसे अपने सिख भाइयों को भी बचाते हैं। नागरिकता संशोधन कानून ने पड़ोसी देशों से आए सिख और अल्पसंख्यक परिवारों को देश की नागरिकता मिलने का रास्ता साफ किया है। ये सब इसलिए संभव हुआ है क्योंकि हमारे गुरुओं ने हमें मानवता को सर्वोपरि रखने की सीख दी है। प्रेम और सौहार्द हमारे संस्कारों का हिस्सा है। साथियों, हमारे गुरु की वाणी है, भय काहू को देत नहीं, भय काहू को देत नहीं, नहीं भय मानत आन, कह नानक सुनी रे मना, ज्ञानी ताही बखानी। अर्थात ज्ञानी वही है जो न किसी को डराए और न किसी से डरे। भारत ने कभी किसी देश या समाज के लिए खतरा नहीं पैदा किया। आज भी हम पूरे विश्व के कल्याण के लिए सोचते हैं, एक ही कामना करते हैं। हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो उसमें पूरे विश्व की प्रगति लक्ष्य का सामने रख करके हम करते हैं। भारत विश्व में योग का प्रसार करता है तो पूरे મહારાષ્ટ્રના અમરાવતીના સાંસદ નવનીત રાણા હનુમાન ચાલીસા મારફત હવે શિવસેનાને ઘેરવા માટે મુંબઈની કૂચ કરવાના છે। શનિવારે નવનીત આ પ્રકારે 500 કાર્યકરો સાથે ઉદ્ધવ ઠાકરેના ઘર માતોશ્રીની બહાર હનુમાન ચાલીસાના પાઠ કરવાના છે। मैं मुंबई का रही हूँ और विदर्भ की बहू हूँ। ये दोनों ताकत मेरे पीछे, उनमें कितनी ताकत है वो देख लीजिए। शिव सैनिकों को तैयारी करने के लिए समय भी दे दिया है कि ये समय और ये तारीख को हम मुंबई आएंगे। आप में ताकत है, आप अपनी ताकत पूरी लगाइए और भगवान के नाम स्मरण में अगर ताकत है तो वो अपनी ताकत से हमें मातोश्री तक पहुंचाएंगे, ये पक्का। शिवसेना नवनीत राणाने लई सतत પડકાર ફેંકી રહ્યા છે કે હિંમત હોય તો મુંબઈના માતૃશ્રી આવીને દેખાડે। मुंबई की लड़की हूँ और इधर की बहू हूँ, तो तेरे घर में जा, लेकिन मातोश्री के ऊपर नहीं आना है। रवि राणा और नवनीत राणा मुंबई के शिव सैनिकों का माथा भड़काने का काम कर रहे। तू बहू है तो उधर रहे, लड़की है तो अपने घर में जा, दूसरे के घर में घुसने का नहीं। આખો વિવાદ મહારાષ્ટ્રમાં અઝાન અને હનુમાન ચાલીસા પર ચાલતા જંગ સાથે જોડાયેલો છે। છેલ્લા કેટલાક દિવસથી એમએનએસ લાઉડસ્પીકર મારફત અઝાનના અવાજનો વિરોધ કરે છે। ઉદ્ધવ ઠાકરે સરકાર પર રાજ ઠાકરે સતત હુમલા કરે છે તો એમએનએસના કાર્યકરો મુંબઈના વિવિધ વિસ્તારોમાં લાઉડસ્પીકર પર હનુમાન ચાલીસાના પાઠ કરી રહ્યા છે।
के करीबी माने जाने वाली महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा इस जंग में एमएनएस के साथ खड़ी है। पिछले दिनों नवनीत राणा ने यहां तक कह दिया था कि राज ठाकरे एक दिन उद्धव ठाकरे की जगह लेंगे। उद्धव ठाकरे की जगह लेने वाले ये राज ठाकरे हैं, क्योंकि जिस तरीके से राज ठाकरे जी में जो बाड़ा साहब की प्रतिमा दिखती है, उनकी विचारधारा उनमें दिखती है, एक भी लोक प्रतिनिधि उनका पार्लियामेंट में नहीं है, विधानसभा में नहीं है, फिर भी उन्होंने बाड़ा साहब की और अपनी हिंदुत्ववादी विचारधारा कभी छोड़ी नहीं। उन्होंने लड़ाई अपनी कंटिन्यू रखी। आ तरफ एमएनएसे आज मुंबई में मराठी फिल्म भोंगा अजाणનું पोस्टर रिलीज कर्યું, जे 3 महीना रोज सिनेमाघर में लागशे। मराठी में लाउडस्पीकर भोंगा कहे छे। भोंगा अजान फिल्म की कहानी एमएनएस लाउडस्पीकर पर अजान आवाज ने लई जे लाइन लेंथ छे तेनाथी मळती आवे छे। मास्क नहीं पहरवा बदल दंड वसूलवा लाउडस्पीकर पर पोलीस तरफथी आपवामां आवी रहेली चेतवણીની आ तस्वीरों यूपीना मेरठनी छे। देशना विविध शहरों में कोरोना जे गतिथी पग पेसारो करी रह्यो छे तेने जोता यूपी थी लई हरियाणा सुधी केटलाक राज्योए मास्क ने फरी फरजियात बनाव्युं। यूपी में सौथी वधु केस मात्र नोएडा में है, ज्यां स्कूलना कारणे मोटी संख्या में विद्यार्थीओ संक्रमित थया छे। कोरोनानी चौथी लहरनी आशंका वच्चे देश में कोरोनाना 20 एप्रिले 2060, 21 एप्रिले 2380 केस नोंधाया। देशनी तुलना में राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण बमणी झड़पथी फैलाई रह्युं छे। दिल्ली में कोरोना केस 19 एप्रिलना रोज 632, ज्यारे के 20 एप्रिलना रोज 1000 केस नोंधाया। कोरोनाना आ वधता केस एटले पण खतरनाक साबित थई रह्या छे के देश में आर वेल्यू जान्युआरी बादथी वधी छे। आर वेल्यू વધવાનો સ્પષ્ટ અર્થ છે કે દેશમાં કોરોના સંક્રમણ વધી રહ્યું છે। જો કે નિષ્ણાંતો દેશમાં કોરોનાની ચોથી લહેરની આશંકાનો ઇનકાર કરે છે। કોરોનાથી બચવા માટે સરકાર ભલે વેક્સિનેશનની રફતાર વધારતી હોય, પણ કોવિડ પ્રોટોકોલના પાલન વિના કોરોના સામેની જંગ જીતવી મુશ્કેલ છે। તેથી કોરોનાથી બચવા માટે હાલમાં પણ માસ્ક પહેરવું અને સામાજિક અંતરનું પાલન કરવું જરૂરી છે। તેથી તમે પણ માસ્ક પહેરો અને સામાજિક અંતરનું પાલન કરો।